जब किसी ट्रेलर रिलीज होता है तो नीचे कमेंट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो इतने अच्छे अच्छे कमेंट इस तरह से मिल रहे हैं, सो व्हाट एवर सर। आई मीन रियली हैप्पी। ट्रेलर सबको पसंद आया है और बड़ी मेहनत से और शिद्दत से हम लोगों ने फिल्म बनाई है और होपफुली फिल्म भी लोगों को पसंद आएगी। Oh, I think we were talking about this just a while ago, that the views and the likes and the response to the trailer, we all are very, very happy, honestly. And as he was mentioning कि बहुत ही मेहनत से, of course यार movie तो बनने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत लोगों के efforts लगते हैं. It's an army working on a project. So of course यार, we are very happy, very grateful and feeling blessed all together. I mean, I'd like to thank everyone that has liked like Suman was saying, the percentage of likes compared to the views on the trailer is much higher than a lot of movies out recently. So for that, I can only thank the audience that they are liking the hard work that our team has made, both the team in front of the camera and the team behind the scenes who have been working probably more than the actors. Yeah, so thank you, the audience. Thank you for loving our work, and I hope that we'll see you all in the theaters as from 19th July. आई लाइक टू स्टार्ट विद कैप्टन ऑफ टीम कबीर सिंह के बाद इतना प्यार मिला कबीर सिंह ने आपको, उसके बाद आपने क्या कुछ सीखा जो इसमें यूज़ किया? नहीं, ऑब्वियसली हम लोग सीखते हैं, हर फिल्म से सीखते हैं। तो कबीर सिंह, सिर्फ कबीर सिंह ही नहीं, आई मीन वर्किंग इन इंडस्ट्री फॉर पास्ट 10 years now. So there are a lot of films, lot of directors which I have learned from. So Kabir Singh is obviously one of them. But I mean, you take something from every film, and then it's your thing that you have. I mean, every individual is different. आपका अपना विजन होता है. तो दिस फिल्म में मेरा विजन है जो मैंने कोशिश की है इसको अच्छा बनाने की. सो होपफुली आप सब लोगों को पसंद आएगी. अनन्या बख्शी किस तरह का कैरेक्टर है ये? और क्योंकि एक हिंदी चापलूस लेडी, ये सब कुछ नाम दे सकते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी आप? Honestly, Ananya ka character is very strong. Like she is not, anybody doing anything. She's a very strong character. She is playing a very important part in the heist. In fact, she is leading the heist, and she's someone who knows what she wants. She's very clear in her agenda, in life and in work. And at the same time, she knows how to get her things done. She is very clever, and I think you will enjoy watching Ananya on screen. As we see, your Hindi accent is not fluent, but you sung a song in this movie. So what is the story behind this? Okay. तो मेरा हिंदी अगर आप बता रहे हो कि अच्छा नहीं है लेकिन समझ आ रहे हैं ना, ओके तो ये मेरा हिंदी उससे ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये मेरा एक्सेंट मूवी के लिए मैंने बनाया. तो फ्रेंच दिख रहे हैं ना ऑडियंस कि मेरे हिंदी में कुछ फ्रेंच है, क्योंकि मेरा कैरेक्टर भी एक NOI है जो मॉरिशस में रहे हैं. तो अनन्या मुझको कांटेक्ट करती हैं ताकि इंफॉर्मेशन मिले और उनके साथ ये हाइस्ट कंडक्ट कर सके. मेरा फ्री लुक्स है मूवी में, three very interesting looks that I'm proud of and I could connect with. तो मैंने गाना भी गाया और गाया पलक मुचल के साथ. तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरा पहले गाना पलक मुचल के साथ है, उसका नाम है आजा बेरी, और वो भी बहुत प्यार मिल रहे हैं यूट्यूब पे. Thank you all the audience for all the love that you are showing. And yeah, तो आपके लिए मेरा हिंदी तो और ज़्यादा इम्प्रूव करूँगा, don't worry. Yeah, big claps for her. Yeah, so good, so good. Yeah. You face any difficulties to learning from the language and anything? To be honest, no. I mean, क्योंकि मेरा कैरेक्टर ही एक NOI है जो एक फ्रेंच आइलैंड में रह रहे हैं, तो मेरा हिंदी सूट करता है. लेकिन अगर डायरेक्टर साहब मुझे एक और रोल मिले जहाँ मैं like प्योर हिंदी या शुभ हिंदी, शुद्ध हिंदी, हाँ शुद्ध हिंदी बोलना पड़ेगा, तो ये भी करूँगा, चैलेंज ले लूँगा. I mean, he is a very hard working guy. So अगर मैं उन्हें कुछ बोलूँगा तो वो मेहनत करेंगे उसके ऊपर और वो he will learn it and deliver it. Yes. और अगर ऑडियंस बोलेंगे कि
आपका हिंदी और अच्छा करना है तो और करूँगा अच्छा ऑडियंस के लिए, लेकिन प्यार देना थिएटर्स में। सर ऑडियंस को क्या इतना अट्रैक्ट करेगा द हाइट्स में, जो आपने इतनी अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स के साथ आपने जो दर्शाया है, तो क्या क्यों देखने आए इस ऑडियंस को बताना चाहिए कुछ? सी ऑडियंस को हमेशा अच्छी कहानियाँ पसंद आती है। आप कोई भी फिल्म हाल ही की उठा के देखिए, 12th फेल या फिर जो भले ही छोटी लापता लेडीज़, यस, तो जो कि छोटी फिल्म्स है उसमें कोई बड़े बड़े फेसेस नहीं है, बट बिकॉज द स्टोरी इज़ गुड पीपल लाइक इट। सो ये फिल्म की कहानी भी बहुत अच्छी है और ये एक थ्रिलर फिल्म है, एंटरटेनिंग फिल्म है। तो आप जब सिनेमाघरों में जाओगे देखोगे तो आपको लगेगा कि आई मीन यू विल बी हुक्ड टू योर सीट्स, you know. हाँ। So it's kind of entertaining and fun film, bit suspense, मसाला फिल्म बोल दी है। Who is Viren Shah, उनका कैरेक्टर कैसे, क्योंकि ट्रेलर में काफी इंटरेस्टिंग तरीके से उन्हें दिखाया गया है, सो उसके लिए पब्लिक ज़्यादा एक्साइटेड हो रही है। विरेन शाह क्या है, क्या है, उसको मैंने कुछ बताना चाहिए। सो बहुत ज़्यादा तो रिवील नहीं करना चाहता मैं, बट या आई मीन वीरेन शाह का कैरेक्टर सिद्धांत कपूर प्ले कर रहे हैं ऑब्वियसली, और विलन है हमारे फिल्म में। सो उनका आई मीन आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसा है, खास करके इंडिया में बहुत ऐसा होता है कि यू नो पैसा, लोग यहाँ का इंडियंस का पैसा लेके भाग जाते हैं और पैसा अपने को मिलता नहीं है वापस, और अगर आता भी है तो वो गवर्नमेंट के पास आता है। तो व्हाट इफ इन पैरेलल वर्ल्ड जहाँ पे कि यहाँ से कुछ लोग जाए और पैसा लेके आए और लोगों को जिनका पैसा गया है उनका दे, उन्हीं को दे। सो ये लोग, हमारी टीम जो है या जाती है, उससे पैसा लेती है कि नहीं लेती है, क्या होता है, या भी आपको फिल्म में देखना। जब किसी का भी कोई पहला काम होता है, हाँ। डेब्यू फिल्म होती है, तो काफ़ी आगे के लिए भी प्रेशर होता है और ये मेमोरेबल हो जाता है कि ये चीज़ मेरा पहला है। तो इस तरह का कुछ प्रेशर ऑडियंस से, पॉजिटिव रिव्यू, नेगेटिव रिव्यू, कुछ? Honestly, see, of course, we all are very, I won't say pressure है, but we all are very like हम चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट अच्छा हो, कौन नहीं चाहेगा, हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है। प्रेशर नहीं है बट उम्मीदें बहुत है, हम सबको खुद से भी, ऑडियंस से भी और अपने काम से भी। और हम बस यही होप कर रहे हैं कि हमने जितने प्यार और मेहनत से ये प्रोजेक्ट बनाया है वो उतने ही प्यार और यू नो विद अ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट वो रिसीव हो जाए ऑडियंस के थ्रू। एंड हमारे लिए आई थिंक विक्ट्री वही होगी कि ऑडियंस थिएटर में आए, देखे, अप्रिशिएट करना है नहीं करना है वो तो ऑडियंस के हाथ में है, बट कम से कम आकर देखे, वो उतना मौका दे हमको, वो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है ऑडियंस से। बट रेस्ट आई थिंक इज लाइक एवरी मूवी हैज़ इट्स डेस्टिनी, सो we'll see what our movie has in store. I mean, I'd like to say that we made the movie with a lot of, I mean, everyone makes movie with a lot of passion and a lot of love. But this one, we made the movie with a lot of logic. So basically, if you want a movie which is not like over the top, with very nice scenery, very nice locations, a storyline which is always something is happening, so you keep on, you're on the edge of the seats trying to know what's going to happen next. So this is the movie for you. It's a cool movie for cool people, and I'm sure that everyone will find something that they like in it. Dialogues भी बहुत अच्छा लिखा है निकिता ने, हमारे पूरे टीम ने बहुत अच्छा काम किया, अपूर्वा, पूरे टीम 100% अच्छा काम किया। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि पहले फिल्म में मैंने एक ऐसा अच्छा टीम के साथ काम किया, और सारे प्रोड्यूसर लोग, फरीन, याश, बहुत अकोमोडेटिंग थे, बहुत जो भी हमको चाहिए थे वो मिला। Even though we were filming in an island basically where the weather changes every single minute, so basically it was hard work, but we wanted to give a logical film. We wanted a story that people, when they watched it, they want to watch it again. The cinematography is made for cinemas, so इसीलिए ये movie सिर्फ सिनेमा में जा रही है। इंडिया में next week UK में जा रही है, मॉरिशस में, साउथ अफ्रीका में, फिर US में भी जाएंगे। तो I mean, the only reason we're not doing it at the same time is because
we have to be at the other premiere also. So it's a first, I think, in Bollywood that we are having premieres in different countries. We believe in this movie. I mean, obviously the audience will decide, but we know that we've put something out. I mean, that's why I'm in it as well, because the writing was so good. ये story बहुत अलग है और पूरा original है. So anyone who had concerns thinking that it's a copy, no, it's not. It's made from scratch. A lot of people were involved in, I mean, in giving their bits and pieces as to how to improve the story. So I would like to say that, yes, every movie has their destiny, but this one is made with you in mind, with the audience in mind. ये आपके लिए बने हैं. आपने पूछा कि एक ऐसा मूवी चाहिए जो लॉजिकल है, जो देखने में अच्छा लगे, तो हमने इसी हाँ. You asked for it and we delivered. Exactly, exactly. सोशल मीडिया का दौर है, मोस्ट ऑफ द पीपल यूजिंग सोशल मीडिया काफ़ी एक तरह से बोल सकते हैं कि पॉजिटिव रिव्यू नेगेटिव रिव्यू हर सोशल मीडिया से पता ही चल जाता है. एक पब्लिक फिगर होने के बाद एक जब आप लोगों के तरफ पॉजिटिव रिव्यू नेगेटिव रिव्यू आता है तो उस चीज़ से आप लोग कितना इफेक्टेड हो. सर आपसे मेनली जानना चाहिए, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम आदि पुरुष का, तो डायरेक्टर सर को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिव्यू मिले थे, तो कुछ सीन्स चेंज किए थे उन्होंने, उसके बाद काफ़ी अच्छा रिव्यू मिला. तो उस तरीके से आप अपने आप काम को किस तरह से ध्यान में रखते हैं? See, पॉजिटिव नेगेटिव रिव्यूज़ तो आते रहेंगे. वी हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ. आपको अपना अगर कन्विक्शन है, आप कहानी कैसे सुनाना चाहते हैं और आपको खुद पे अगर कन्विक्शन है, तो आप वो डिलीवर करेंगे भी और लोगों को पसंद भी आएगा. अब हर चीज़ हर किसी को पसंद नहीं आती. अब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि हर 100% ऑडियंस को पसंद आएगी. ऑब्वियसली कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी, लेकिन आप मैक्सिमम लोगों को पसंद आएगी. ऐसा कन्विक्शन अगर आप में है, तो आप I mean, you can do a good film and obviously people will like it. Honestly, I agree with Aditya because see, हम इतना ये सब नहीं सोच सकते कि ये करते हैं, ये पसंद आएगा इसलिए करते हैं. आप आगे का इतना नहीं सोच सकते हो. आप खुद पर बिलीव कर कर अपना बेस्ट देकर अपनी बेस्ट खुद के लिए बेस्ट होप कर सकते हो. बट ऑफ कोर्स हम एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहाँ पर हमारे हाथ में नहीं है कुछ. आवर जॉब इज़ कि हमने हमारा प्रोजेक्ट बनाया, हमने हमारा बेस्ट दिया और ऑडियंस के सामने उसे प्रेजेंट कर दिया है. नाउ इट्स देयर डिसीजन. इवन इफ इट्स अ गुड मूवी एंड इफ दे डोंट लाइक इट, देन you know we have failed at our part. So that is something that we always need to be very mindful about, and we always keep that in mind so that whatever happens, however the audience react, हम उसे positively ही लेंगे. We are not going to be like, And then we'll improve. yeah, and we'll improve. Yeah. आप इसे जानना चाहिए कि ब्यूटी ऑफ इंडिया आपको बोलते हैं लोग, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड नज़ारा के साथ, एंड नाउ पीपल विल टू वॉच इन बिग थिएटर. सो आगे की आप प्रोजेक्ट्स कैसे सिलेक्ट करोगे? काफ़ी प्रेशर हो जाता है जब एक प्रोजेक्ट आप दे देते हो, लोग पसंद करने लगते हैं, तो आगे भी उसी तरह पसंद करते रहें. यार honestly मुझे लगता है this is very soon for me to even think about कि ये सब. I feel I'll be very grateful for all the projects that will be coming my way. कोई भी project हो, कोई भी script हो, इस project से मुझे और आगे कितनी मेरे career में help मिल रही है, ये सारी चीज़ें is going to be a blessing only for me, and I'm always going to be grateful for all the opportunities जो आगे आएगी भी. मुझे नहीं लगता है कि मैं अभी फ़िलहाल कोई प्रेशर लेने वाली हूँ कि ओ आई नीड टू बी वेरी चूजी दिस और दैट और दिस. आई डोंट थिंक आई एम गोना गो वेरी लाइट विथ माई सेल्फ. फ़िलहाल मेरा यही अप्रोच है कि जिस स्क्रिप्ट से और जिस कैरेक्टर से मुझे कनेक्शन फील हो जाएगा, दैट इज़ गोइंग टू बी माई प्रोजेक्ट. See, honestly, all of them have done a great job, created a legacy जिसको match करना is like a dream for each one of us, like all the women I think who are pursuing anything in their life. एक ऐसी legacy बनाना जो मतलब सदियों तक याद रहे, it's a dream for anybody and everybody. And I honestly, I don't follow a particular person in general कि लाइक इनको फॉलो करना है या आपने जैसे नाम लिए हैं. आई थिंक उन सभी को मुझे उन सब से मैं जितना भी सीख सकूँ वो सीख कर उसे अपने अंदर इम्प्लाई करना है और देखना है कि चलो अब मैं कुछ कर पा रही हूँ क्या, अपना मैं कुछ बेस्ट दे पा रही हूँ क्या.
तो आई थिंक मेरा हमेशा से फोकस वैसे ही रहा है कि सबसे मैं जितना सीख सकूं उतना सीखूं और अपना बेस्ट दूं अपने वर्जन की। कोई एक पर्टिकुलर नाम लेना यार हु अदर देन पीसी हु अदर देन हर या ये आप दोनों से जानना चाहेंगे कि जब आप एक मुकाम पे पहुंच जाते हैं जैसे आपने 2019 में कुछ एक ऐसी छाप छोड़ी जो अभी तक है और आगे भी रहेगी सर आपको भी कबीर सिंह के बाद काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला तो उस मोमेंट से पहले काफ़ी स्ट्रगल चल रहा था उसके बाद कुछ ऐसी एक चीज़ जो काफ़ी बदल गई हो वो शेयर करना चाहेंगे आई थिंक कोविड और यार ऑनेस्टली बदलाव तो मैं कहूँगी पर्सनल लेवल पर आ जाता है आपके लाइफ में कोई बड़ी चीज़ होती है यू बिकम मोर humble like personally I think we all have become more humble with great opportunities in our life and honestly you are just very happy and very excited for the future अब जैसे कोई बड़ी चीज़ जैसे आपने कहा कि मिस वर्ल्ड हुई थी मेरे लाइफ में 2019 मैंने कभी ड्रीम भी नहीं किया था कि वो पॉसिबल भी हो पाएगा और मतलब बैक इन 2018 आई थिंक it was a blessing for me whatever happened अपना हार्ड वर्क किया और फिर वो एग्जीक्यूट हुआ and whatever I have earned but I think that has only made me more hungry for good work for good opportunities and I think has only made me believe in the fact that all I have to do is work hard and deliver my best. Yeah, I mean, obviously कबीर सिंह से बहुत प्यार मिला, but एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर आप जब किसी फिल्म से जुड़े होते हो तो आपको वो विजन आपका नहीं होता, वो विजन डायरेक्टर का होता है. सो कबीर सिंह वाज संदीप सर's vision and this हाँ संदीप रेड्डी वांगा and this film is my vision. So ये फिल्म में जितने भी डायरेक्टर के साथ काम किया हुआ है उनसे जितना भी मैं सीख पाया हूँ उसको सब कुछ यहाँ डालने की कोशिश की है. और फिल्म मेकिंग इज़ अ लर्निंग प्रोसेस. आप हर दिन कुछ नया सीखते हो. ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ सीख लिया और मैंने फिल्म बना दी. ऑब्वियसली मैंने भी कुछ गलतियाँ की होंगी, तो आपको सीखना है और आपको आगे काम करते जाना है. या आई मीन चल रही है बातें. एक फिल्म के ऊपर काम कर रहा हूँ मैं, एक वेब सीरीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ. और है बहुत ज़्यादा कुछ रिवील नहीं कर सकता फिलहाल, बट देयर आर समथिंग इन पाइपलाइन. I feel right now the only thing that's in my head and in the pipeline is The Heist. So that I would like to request the audience to please make sure that they go into their nearby theaters. Please जाइए, 19 जुलाई को सिनेमाज में आ रही है. जितना प्यार दे सके हमें प्लीज़ दीजिए. I'd like to second what Suman is saying. So it's releasing in cinemas this Friday, 19th July. Hope to see all you guys there. We were talking about the reviews that you mentioned earlier. So movie dekh ke review dena. Don't make any judgment without watching. So watch it first. Tell us what you think. I mean, I'm confident that most people will like it. It's a content-driven. They won't like it for me or for Suman, but as a whole, it's a very, very good movie. It's a very good content-driven movie. It's a story that had to be told. It's a story that it's a heist for India. It's a heist for, it's something never seen in cinema before. It's something very different. The story is something that I would want to watch maybe a few times. So watch it first. Tell us what you think. Obviously, we can't expect everyone to like everything. But as long as you can give us constructive criticism, things that can help us in our journey that we're both starting in Bollywood now, and we're still I wouldn't say, we're still at ground zero. Let's say at ground zero right now. Maybe on Friday it will be slightly different, but we hope with your love it will be much different and that we can keep on making movies. No, I know our audience is very sweet. They are very welcoming. Yeah, they have. All of us. They've shown the love on the trailer, so that's. You will just love it. I just know it's going to be a good film. Guys, please go and watch. No, I know it's a good film, but I want them to watch it so they also know it's a good film. You also have to know it's a good. It's nice meeting with you all. काफी अच्छा लगा आपसे बात करके. And in a one line, you want to say something for your viewers or lovely fans. Go and watch 19th July. Oh yeah, let's please. Yeah. Yes. Yeah, you
We'll Okay, just you say lead the it, you heist lead. in cinemas, Yeah. 19 July. Yeah. Okay. So Start. 1, 2, 3, go. The Heist in cinemas, 19 19 July. July. Yeah. Thank you.